Acts 21 chapter 1 verse से 16 verse. Job 25 chapter 26 chapter 27 chapter 28 chapter. हम Acts 21 chapter 1 to 16 verse पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से. Chapter 21. Paul, journeying to Jerusalem, cometh to Philip's house, whose daughters prophesied. Paul at Jerusalem is apprehended. First verse say, and it came to pass that after we were gotten from them and had launched, we came with a straight course unto Kos, and the day following unto Rhodes, and from thence unto Patara, and finding a ship sailing over unto Phoenicia, we went aboard and set forth. Now when we had discovered Cyprus, we left it on the left hand and sailed into Syria and landed at Tyre, for there the ship was to unlade her burden. And finding disciples, we tarried there 7 days, who said to Paul through the Spirit that he should not go up to Jerusalem. And when we had accomplished those days, we departed and went our way, and they all brought us on our way with wives and children, till we were out of the city, and we kneeled down on the shore and prayed. And when we had taken our leave one of another, we took ship, and they returned home again. And when we had finished our course from Tyre, we came to Ptolemais and Ptolemais, and saluted the brethren, and abode with them 1 day. And the next day we that were of Paul's company departed and came unto Caesarea, and we entered into the house of Philip the evangelist, which was one of the 7, and abode with him. And the same man had 4 daughters, virgins, which did prophesy. And as we tarried there many days, there came down from Judea certain prophet named Agabus. And when he was come unto us, he took Paul's girdle and bound his own hands and feet, and said, Thus saith the Holy Ghost, so shall the Jews at Jerusalem bind the man that owneth this girdle, and shall deliver him into the hands of the Gentiles. And when we heard these things, both we and they of that place besought him not to go up to Jerusalem. Then Paul answered, What mean ye to weep and to break mine heart? For I am ready not to be bound only, but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus. And when he would not be persuaded, we ceased, saying, The will of the Lord be done. And after those days we took up our carriages and went up to Jerusalem. There went with us also certain of the disciples of the Caesarea, and brought with them one Nason of Cyprus, an old disciple, with whom we should lodge. प्रेरितों के काम 21 अध्याय 1 वचन से 16 वचन पढ़ेंगे, और अय्यूब की पुस्तक 25 अध्याय 26 अध्याय 27 अध्याय 28 अध्याय. हम प्रेरितों के काम को पहले पढ़ेंगे 21 अध्याय 1 वचन से 16 वचन. पौलुस का यरूशलेम को जाना. 21 अध्याय पहले वचन से 16 वचन. जब हमने उनसे अलग होकर जहाज खोला तो सीधे मार्ग से कोस में आए, और दूसरे दिन रुदुस में आए, वहाँ से पतरा में. वहाँ एक जहाज फिनिके को जाता हुआ मिला, और हमने उस पर चढ़कर उसे खोल दिया. जब साइप्रस दिखाई दिया तो हमने उसे बाएं हाथ छोड़ा और सीरिया को चलकर सूर में उतरे, क्योंकि वहाँ जहाज का माल उतरना था. चेलों को पाकर हम वहाँ 7 दिन तक रहे. उन्होंने आत्मा के सिखाए पौलुस से कहा कि यरूशलेम में पाँव न रखना.
जब वे दिन पूरे हो गए तो हम वहाँ से चल दिए और सब ने स्त्रियाँ और बालकों समेत हमें नगर के बाहर तक पहुंचाया और हमने किनारे पर घुटने टेक कर प्रार्थना की। तब एक दूसरे से विदा होकर हम तो जहाज पर चढ़े और वे अपने अपने घर लौट गए। तब हम सूर से जल यात्रा पूरी करके पतुलिमयिस में पहुँचे और भाइयों को नमस्कार करके उनके साथ एक दिन रहे। दूसरे दिन हम वहाँ से चलकर कैसरिया में आए और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो सातों में से एक था, जाकर उसके यहाँ रहे। उसकी 4 कुंवारी पुत्रियाँ थीं जो भविष्यवाणी करती थी। जब हम वहाँ बहुत दिन रह चुके तो अगबुस नामक एक भविष्यद्वक्ता यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। जब हमने ये बातें सुनी तो हम और वहाँ के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को न जाए, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। जब उसने न माना तो हम यह कहकर चुप हो गए, प्रभु की इच्छा पूरी हो। इन दिनों के बाद हमने तैयारी की और यरूशलेम को चल दिए। कैसरिया से भी कुछ चेले हमारे साथ हो लिए और हमें मनासोन नामक साइप्रस के एक पुराने चेले के यहाँ ले आए कि हम उसके यहाँ टिके। जॉब 25 चैप्टर, 26 चैप्टर, 27 चैप्टर, 28 चैप्टर। हम 25 चैप्टर से पढ़ेंगे। Bildad declares the sovereignty of God, before whom man cannot be justified. Then answered Bildad the Shuhite and said, Dominion and fear are with him. He maketh peace in his high places. Is there any number of his armies, and upon whom doeth not his light arise? And how then can man be justified with God? Or how can he be clean that is born of a woman? Behold, even to the moon, and it shineth not, yea, the stars are not pure in his sight. How much less man that is a worm, and the son of man which is a worm? Chapter 26. Job reproves the uncharitable spirit of Bildad, God's power infinite and unsearchable. First verse say, But Job answered and said, How hast thou helped him that is without power? How savest thou the arm that hath no strength? How hast thou counselled him that hath no wisdom? And how hast thou plentifully declared the thing as it is? To whom hast thou uttered words, and whose spirit came from thee? Dead things are formed from under the waters, and the inhabitants thereof. Hell is naked before him, and destruction hath no covering. He stretcheth out the north over the empty place, and hangeth the earth upon nothing. He bindeth up the waters in his thick clouds, and the cloud is not rent under them. He holdeth back the face of his throne, and spreadeth his cloud upon it. He hath compassed the waters with bounds, until the day and night come to an end. The pillars of heaven tremble, and are astonished at his reproof. He divideth the sea with his power, and by his understanding he smiteth through the proud. By his spirit he hath garnished the heavens. His hand hath formed the crooked serpent. Lo, these are parts of his ways, but how little a portion is heard of him? But the thunder of his power who can understand? Chapter 27.
Job declares his sincerity. The hypocrite without hope. First verse say, moreover, Job continued his parable and said, as God liveth, who hath taken away my judgment, and the Almighty who hath vexed my soul, all the while my breath is in me, and the Spirit of God is in my nostrils. My lips shall not speak wickedness, nor my tongue utter deceit. God forbid that I should justify you till I die. I will not remove mine integrity from me. My righteousness I hold fast, and will not let it go. My heart shall not reproach me as long as I live. Let mine enemy be as the wicked, and he that riseth up against me as the unrighteous. For what is the hope of the hypocrite, though he hath gained, when God taketh away his soul? Will God hear his cry when trouble cometh upon him? Will he delight himself in the Almighty? Will he always call upon God? I will teach you by the hand of God. That which is with the Almighty will I not conceal. Behold, all ye yourselves have seen it. Why then are ye thus altogether vain? This is the portion of a wicked man with God, and the heritage of oppressors, which they shall receive of the Almighty. If his children be multiplied, it is for the sword, and his offspring shall not be satisfied with bread. Those that remain of him shall be buried in death, and his widows shall not weep. Though he heap up silver as the dust, and prepare raiment as the clay, he may prepare it, but the just shall put it on, the innocent shall divide the silver. He buildeth his house as a moth, and as a booth that the keeper maketh. The rich man shall lie down, but he shall not be gathered. He openeth his eyes, and he is not. Terrors take hold on him as waters. A tempest stealeth him away in the night. The east wind carrieth him away, and departeth, and as a storm hurleth him out of his place. For God shall cast upon him and not spare. He would fain flee out of his hand. Men shall clap their hands at him, and shall hiss him out of his place. Chapter 28. There is a knowledge of natural things, but wisdom is an excellent gift of God. First verse से पढ़ेंगे. Surely there is a vein for the silver, and a place for gold where they find it. Iron is taken out of the earth, and brass is molten out of the stone. He setteth an end to darkness, and searcheth out all perfection. The stones of darkness and the shadow of death. The flood breaketh out from the inhabitant, even the waters forgotten of the foot. They were dried up, they are gone away from men. As for the earth, out of it cometh bread, and under it is turned up as it were fire. The stones of it are the place of sapphires, and it hath dust of gold. There is a path which no fowl knoweth, and which the vulture's eye hath not seen. The lion's whelps have not trodden it, nor the fierce lion passed by it. He putteth forth his hand upon the rock. He overturneth the mountains by the roots. He cutteth out rivers among the rocks, and his eyes seeth every precious thing. He bindeth the floods from overflowing, and the thing that is hid bringeth he forth to light. But where shall wisdom be found? And where is the place of understanding? Man knoweth not the price thereof, neither is it found in the land of the living. The depth saith, it is not in me.
And the sea saith, It is not with me. It cannot be gotten for gold, neither shall silver be weighed for the price thereof. It cannot be valued with the gold of Ophir, with the precious onyx or the sapphire. The gold and the crystal cannot equal it, and the exchange of it shall not be for jewels of fine gold. No mention shall be made of coral or of pearls, for the price of wisdom is above rubies. The topaz of Ethiopia shall not equal it, neither shall it be valued with pure gold. Whence then cometh wisdom, and where is the place of understanding? Seeing it is hid from the eyes of all living, and kept close from the fowls of the air. Destruction and death say, We have heard the fame thereof with our ears. God understandeth the way thereof, and he knoweth the place thereof. For he looketh to the ends of the earth, and seeth under the whole heaven, to make the weight for the winds, and he weigheth the waters by measure. When he made a decree for the rain, and a way for the lightning of the thunder, then did he see it and declare it. He prepared it, yea, and searched it out. And unto man he said, Behold, the fear of the Lord, that is wisdom, and to depart from evil is understanding. अय्यूब की पुस्तक 25 अध्याय, 26 अध्याय, 27 अध्याय, 28 अध्याय हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल से। 25 अध्याय, बिल्दद का कथन, पहले वचन से। तब शूही बिल्दद ने कहा, प्रभुता करना और भय मनवाना यह उसी का काम है। वह अपने ऊंचे ऊंचे स्थानों में शांति रखता है। क्या उसकी सेनाओं की गिनती हो सकती है? कौन है जिस पर उसका प्रकाश नहीं पड़ता? फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कैसे ठहर सकता है? जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वह कैसे निर्मल हो सकता है? देख, उसकी दृष्टि में चंद्रमा भी अंधेरा ठहरता और तारे भी निर्मल नहीं ठहरते। फिर मनुष्य की क्या गिनती जो कीड़ा है, और आदमी कहाँ रह जो केंचुआ है? अय्यूब का उत्तर 26 अध्याय पहले वचन से। तब अय्यूब ने कहा, निर्बल जन की तो ने कितनी बड़ी सहायता की, और जिसकी बाह में सामर्थ्य नहीं उसको तूने कैसे संभाला है। निर्बुद्धि मनुष्य को तूने कितनी अच्छी सम्मति दी, और अपनी खरी बुद्धि कैसी भली भांति प्रकट की है। तूने किसके हित के लिए बातें कही, और किसके मन की बातें तेरे मुँह से निकली। बिल्दद का कथन, बहुत दिन के मरे हुए लोग भी जल निधि और उसके निवासियों के तले तड़पते हैं। अधोलोक उसके सामने उघड़ा रहता है, और विनाश का स्थान ढक नहीं सकता। वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है, और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। वह जल को अपनी काली घटाओं में बांध रखता है, और बादल उसके बोझ से नहीं फटता। वह अपने सिंहासन के सामने बादल फैलाकर उसको छिपाए रखता है। उजियाले और अंधियारे के बीच जहाँ सीमा बंधी है, वहाँ तक उसने जल निधि की सीमा ठहरा रखी है। उसकी घुड़की से आकाश के खंभे थरथरा कर चकित होते हैं। वह अपने बल से समुद्र को शांत करता, और अपनी बुद्धि से रहब को छेद देता है। उसके सुवास से आकाशमंडल स्वच्छ हो जाता है। वह अपने हाथ से वेग भागने वाले नाग को मार देता है। देखो, ये तो उसकी गति के किनारे ही है, और उसकी आहट फुसफुसाहट ही सी तो सुन पड़ती है। फिर उसके पराक्रम के गरजने का भेद कौन समझ सकता है? अय्यूब का उत्तर 27 अध्याय पहले वचन से। अय्यूब ने और भी अपनी गूढ़ बात उठाई और कहा, मैं परमेश्वर के जीवन की शपथ खाता हूँ, जिसने मेरा न्याय बिगाड़ दिया, अर्थात वह उस सर्वशक्तिमान के जीवन की जिसने मेरा प्राण कड़ुआ कर दिया।
क्योंकि अब तक मेरी सांस बराबर आती है और परमेश्वर का आत्मा मेरे नथुनों में बना है। मैं यह कहता हूँ कि मेरे मुंह से कोई कुटिल बात न निकलेगी और न मैं कपट की बातें बोलूँगा। ईश्वर न करे कि मैं तुम लोगों को सच्चा ठहराऊँ। जब तक मेरा प्राण न छूटे तब तक मैं अपनी खराई से न हटूँगा। मैं अपना धर्म पकड़े हुए हूँ और उसको हाथ से जाने न दूँगा, क्योंकि मेरा मन जीवन के किसी दिन के लिए मुझे दोषी नहीं ठहराता। मेरा शत्रु दुष्टों के समान और जो मेरे विरुद्ध उठता है वह कुटिलों के तुल्य ठहरे। जब परमेश्वर भक्तिहीन मनुष्य का प्राण ले ले तब यद्यपि उसने धन भी प्राप्त किया हो तो भी उसकी क्या आशा रहेगी। जब वह संकट में पड़े तब क्या परमेश्वर उसकी दोहाई सुनेगा? क्या वह सर्वशक्तिमान में सुख पा सकेगा और हर समय परमेश्वर को पुकार सकेगा? मैं तुम्हें परमेश्वर के काम के विषय शिक्षा दूंगा और सर्वशक्तिमान की बात मैं न छिपाऊंगा। देखो, तुम लोग सबके सब उसे स्वयं देख चुके हो, फिर तुम व्यर्थ विचार क्यों पकड़े रहते हो? सोपर का कथन, दुष्ट मनुष्य का भाग परमेश्वर की ओर से यह है और बलात्कारियों का अंश जो वे सर्वशक्तिमान के हाथ से पाते हैं वह यह है कि चाहे उसके बच्चे गिनती में बढ़ भी जाए तो भी तलवार ही के लिए बढ़ेंगे और उसकी संतान पेट भर रोटी न खाने पाएगी। उसके जो लोग बच जाए वे मरकर कब्र को पहुँचेंगे और उसके यहाँ की विधवाएं न रोएंगी, चाहे वह रुपया धूल के समान बटोर रखे और वस्त्र मिट्टी के किनकों के तुल्य अनगिनत तैयार कराए। वह उन्हें तैयार भले ही कराए, परंतु धर्मी उन्हें पहन लेगा और उसका रुपया निर्दोष लोग आपस में बांटेंगे। उसने अपना घर कीड़े का सा बनाया और खेत के रखवाले की झोपड़ी के समान बनाया। वह धनी होकर लेट जाए परंतु वह गाड़ा न जाएगा, आंख खोलते ही वह जाता रहेगा। भय की धाराएं उसे बहा ले जाएगी, रात को बवंडर उसको उड़ा ले जाएगा, पुरवाई उसे ऐसा उड़ा ले जाएगी और वह जाता रहेगा और उसको उसके स्थान से उड़ा ले जाएगी, क्योंकि परमेश्वर उस पर विपत्तियां बिना तरस खाए डाल देगा। उसके हाथ से वह भाग जाना चाहेगा। लोग उस पर ताली बजाएंगे और उस पर ऐसी सुस्कारियां भरेंगे कि वह अपने स्थान पर न रह सकेगा। बुद्धि की प्रशंसा में 28 अध्याय पहले वचन से, चांदी की खानी तो होती है और सोने के लिए भी स्थान होता है। जहाँ लोग ताते हैं, लोहा मिट्टी में से निकाला जाता और पत्थर पिघलाकर पीतल बनाया जाता है। मनुष्य अंधियारे को दूर दूर तक खोद कर अंधियारे और घोर अंधकार में पत्थर ढूंढते हैं। जहाँ लोग रहते हैं वहाँ से दूर वे खानी खोदते हैं। वहाँ पृथ्वी पर चलने वालों के पांव भी नहीं पड़ते। वे मनुष्य से दूर लटके हुए झूलते रहते हैं। यह भूमि जो है इससे रोटी तो मिलती है, परंतु उसके नीचे के स्थान मानो आग से उलट दिए जाते हैं। उसके पत्थर नीलमणि का स्थान है और उसी में सोने की धूल भी है। उसका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता और किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। उस पर हिंसक पशुओं ने पांव नहीं रखा और न उससे होकर कोई सिंह कभी गया है। मनुष्य चकमक के पत्थर पर हाथ लगाता और पहाड़ों की जड़ ही से उलट देता है। वह चट्टान खोदकर नालियां बनाता और उसकी आंखों को हर एक अनमोल वस्तु दिखाई पड़ती है। वह नदियों को ऐसा रोक देता है कि उनसे एक बूंद भी पानी नहीं टपकता और जो कुछ छिपा है उसे वह उजियाले में निकालता है। परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है? उसका मोल मनुष्य को मालूम नहीं। जीवन लोक में वह कहीं नहीं मिलती, अतः सागर कहता है वह मुझ में नहीं है और समुद्र भी कहता है वह मेरे पास नहीं है।
चोखे सोने से वह मोल लिया नहीं जाता, और न उसके दाम के लिए चांदी तौली जाती है, न तो उसके साथ ओपीर के कुंदन की बराबरी हो सकती है, और न अनमोल सुलेमानी पत्थर या नील मणि की, न सोना न कांच उसके बराबर ठहर सकता है। कुंदन के गहने के बदले भी वह नहीं मिलती। मूंगे और स्फटिक मणि की उसके आगे क्या चर्चा। बुद्धि का मोल मणिक से भी अधिक है। कुश देश के पद्मराग उसके तुल्य नहीं ठहर सकते, और न उससे चोखे कुंदन की बराबरी हो सकती है। फिर बुद्धि कहाँ मिल सकती है, और समझ का स्थान कहाँ है। वह सब प्राणियों की आंखों से छिपी है, और आकाश के पक्षियों के देखने में नहीं आती। विनाश और मृत्यु कहती है, हमने उसकी चर्चा सुनी है, परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है, और उसका स्थान उसको मालूम है। वह तो पृथ्वी की छोर तक ताकता रहता है, और सारे आकाश मंडल के तले देखता भालता है। जब उसने वायु का तौल ठहराया, और जल को नपुए में नापा, और मेह के लिए विधि, और गर्जन और बिजली के लिए मार्ग ठहराया, तब उसने बुद्धि को देखकर उसका बखान भी किया, और उसको सिद्ध करके उसका पूरा भेद जान लिया। तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। टू ईयर्स बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 8 चैप्टर 11 से 18 वर्स तक, जोशुआ 7 चैप्टर। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 11 वचन से 18 वचन तक, यहोशुआ की पुस्तक 7 अध्याय। हम 2 साल के बाइबल रीडिंग 2 ईयर्स बाइबल रीडिंग प्लान को अपने अकेले में बैठकर हमारे व्यक्तिगत पर्सनल टाइम में स्टडी के रूप में ये वचनों को पढ़ेंगे, और इन वचनों के आधार से परमेश्वर का जो उजियाला हमारे अंदर आता है, रोशनी आती है, जो समझ, ज्ञान, बुद्धि हम में प्रकाशित हो जाती है, उसको हमने नोट्स बनाकर लिख लेना है, और उसके अनुसार हमारे जीवन को हमने चलना है। ऐसा करते हुए 2 साल के अंत में देखेंगे हम परमेश्वर के उजियाले से चलाए गए इंसान होकर निखर कर आएंगे। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में काम आ जाता है, उपयोग में आ जाता है, और ऐसा होने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है। निश्चित हमने इस अनुग्रह का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।